अब आ रही है आवाज? आवाज सही आ रही है अब आपको? अस्सलाम वालेकुम everybody. Uh, we got a little late fixing the computer problem for the lecture, and I really hope you all are doing good, enjoying the best of health, and keeping you and everyone around you safe. So, coming to the topic of today's lecture is gallbladder. Again, a very important topic from surgical practice viewpoint and from the point of view of the clinical scenarios and one of the most common cases presented to you in elective surgery. And surgeries and gallbladder cholecystectomies regarding gallbladder are treated as the bread and butter for a general surgeon. So you can well imagine it's a quite a common problem. What we will be doing in this lecture, I hope it opens. ये अच्छा वो स्लाइड बड़ी देर से अच्छा मान गई ठीक है. What we will be studying, we'll be studying the anatomy and physiology of the gallbladder, just to come to know some basics about it, the pathophysiology of gallstones, how they are formed, because gallstones or cholelithiasis is a very commonly encountered problem. And then come rarer problems, but they are still there. They belong to the problems of the biliary tree, other than the gallbladder, and of course the malignancies of the gallbladder and the biliary tree. These are the salient topics we will be discussing. And coming to the anatomy of gallbladder, what is it? Gallbladder is a pear-shaped organ which is situated on the under surface of the liver. And you know that liver spans most of the right hypochondrium. So it lies on the under surface of the liver in a bed called the gallbladder fossa, and it is attached by peritoneal reflections, and it's found on the underneath under surface of the liver. Measures about 7.5 to 12 centimeters. Has the capacity of capacity to store bile of about 25 to 30 milliliters, and has a body, fundus, and a neck. You see in this diagram, yeah, if you can see the arrow, the fundus, body, antrum, and the neck, and then comes the duct, cystic duct. Okay, so it has a body, fundus, and a neck, and then which opens into a duct. And the inner folds or the inner mucosa of the gallbladder is thrown into multiple longitudinal folds known as the crypts of Luschka, which is lined by columnar epithelium and goblet cells. And as I told you, the body, fundus, and neck ultimately of the gallbladder open up into the cystic duct, which is the duct of the gallbladder. And the duct is about 1 to 3 millimeters in diameter under normal circumstances. And if it is dilated more than 5 millimeter or 6 millimeter, then we have to look for the causes. What is causing the obstruction, which is causing the back pressure and ultimately leading to the dilatation of the cystic duct. And common bile duct, we said cystic duct was 1 to 3 millimeters in diameter, and which opens into the common hepatic duct to form the common bile duct. And common bile duct is 7.5 millimeters long and opens into the sphincter of Oddi at the ampulla of Vater. This ampulla of Vater is situated in the second part of duodenum. It receives supply from the sphincter of Oddi, and it is joined by the pancreatic duct to form the hepatopancreatic duct, which ultimately opens up into the ampulla of Vater, which is in the second part of the duodenum. Okay. So in this diagram, body, fundus, neck, and then cystic duct. Cystic duct goes behind the first part of duodenum, loops around to open into the second part of the duodenum, and it is about it as it this common bile duct is about to enter into the second part of duodenum. It is joined by the pancreatic duct.
to form the pancreatic or duodenal duct. So अब ये गौर वाली बात है कि बेसिक एनाटमी इस चीज में आप देख लो इस पिक्चर में, अंडर सरफेस ऑफ द लिवर पे ये सिचुएटेड है गॉल ब्लैडर। इधर ही आप देखें दो लिवर से राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स निकली ग्रीन कलर की जो है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर के अंडर सरफेस से राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स निकली विच merge or fuse together to form the common hepatic duct. ओके, कॉमन हेपेटिक डक्ट में जब सिस्टिक डक्ट आके खुलती है तो उसके आगे वाला पोर्शन जो है वो कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है, ठीक है, और जो जाके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलता है एट द एम्पल ऑफ वेटर एंड स्फिंक्टर ऑफ ऑडाइस से कंट्रोल होता है। ओके, एंड व्हाट डज इट कंटेन, इधर देखो एक ये कैलोस ये हमने बता दिया। उसके बाद एक एक कैलोस ट्रायंगल है, मैं आपको बताना भूल गया। लुक एट दिस वाइट ट्रायंगल फॉर्म, this is an important landmark in doing cholecystectomies. Cholecystectomies are removal of the, is called the removal of the gallbladder. इधर आप देखें, it is superiorly formed by the inferior border of liver. On the right side it is formed by the common hepatic duct, and on the left side it is formed by the cystic duct. तो दो डक्ट्स और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर के दरमियान में ये ट्रायंगल है। एंड व्हाट डज इट कंटेन, इट कंटेन्स अ सिस्टिक आर्टरी एंड द लिम्फ नोड व्हिच इज नोन एज द लिम्फ नोड ऑफ ल्यून। ये दो चीजें इस ट्रायंगल के अंदर होती हैं, सिस्टिक आर्टरी एंड अ लिम्फ नोड। ओके, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर, कॉमन हेपेटिक डक्ट व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय द राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और इधर से आगे सिस्टिक डक्ट। तो ये ट्रायंगल बन गई, इसमें सिस्टिक आर्टरी और लिम्फ नोड के कांटेक्ट है। ओके, एंड दिस इज द कैलोस ट्रायंगल। कैलोस ट्रायंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू विल बी परफॉर्मिंग सर्जरी, आपने कोलेसिस्टेक्टमी करनी है वेदर ओपन और लेप्रोस्कोपिक, उधर आपने इस कैलोस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि आप सिस्टिक डक्ट को कट करें। जब आप गॉल ब्लैडर को निकाल रहे हैं, आप कॉमन हेपेटिक डक्ट को, कॉमन बाइल डक्ट को, राइट हेपेटिक डक्ट को, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट को या उनकी वेसल्स को ना डैमेज करें। सो इट इज़ वाइटल टू आइडेंटिफाई दिस कैलोस ट्रायंगल। ओके, एंड what does gallbladder do? ये तुमने we've talked about the anatomy of the gallbladder, and now we're going to briefly discuss the physiology. What does it do? As you know that gallbladder आपने पहले भी पढ़ा होगा in your previous classes in physiology. Gallbladder is, liver produces bile. Bile is stored in the gallbladder and it is released on into the duodenum. और especially जब हमने सुना है कि जब gallbladder contract होता है तो duodenum, and it is mainly involved in the fat emulsification and digestion of the fat. And what is it composed of? The bile is composed of cholic acid, you know, the oxycholic acid and deoxycholic acid, and lithocholic acid. Then it also has phospholipid, cholesterol and bilirubin. Bilirubin जो RBCs के metabolism को liver produce कर रहा था. Okay, secreted by the liver at the rate of 40 ml per hour, and it goes into the gallbladder and where it is stored and concentrated, and after it is released into the gallbladder, from the gallbladder into the second part of the duodenum, it goes and takes its part in the fat digestion and digestive process, and 95% of these secreted bile salts are reabsorbed in the terminal ileum. ओके, तो इन सब केसेस जहाँ राइट हेमिकलेक्टमी है या राइट साइड राइट साइडेड टर्मिनल आइलियम जहाँ मिसिंग है, वहाँ विटामिन के और इस तरह फैट डिपेंडेंट फैट डिपेंडेंट विटामिन का होता है, उसी तरह बाइल सॉल्ट्स की भी एब्जॉर्प्शन हैम्पर होती है। ठीक है, तो 95% एब्जॉर्ब होने होते हैं टर्मिनल आइलियम से, विच आर अनएबल टू बी एब्जॉर्ब। और कमिंग अगेन, बाइल का हमने फंक्शन पढ़ लिया, तो इसमें वेरिएशंस क्या आ सकती है। व्हाट कैन बी द कंजेनिटल एनोमलीज? कंजेनिटल एनोमली कैन बी एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लैडर है ही नहीं सुरे से, डक्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट जाके खुल रही हैं उसमें सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। क्या फ्रीजियन कैप है,
फ्रीजियन कैप एक टिपिकल कल्चरल फोक कैप है जिसके जो आप देख रहे हैं नीचे, इफ यू कैन सी दिस एरो फिगर बी के अंदर इसका जो 2 है, फिगर बी का 2 जो है, दिस इज लाइक अ कैप की तरह का होता है, क्लाउन्स वगैरह पहनते थे, तो दिस इज अ फ्रिजियन कैप। ये इसमें हो सकते हैं मल्टीपल सेप्टेशन हो सकती हैं, ठीक है। फ्लोटिंग गॉल ब्लैडर हो सकता है, उसके बाद एब्सेंस ऑफ सिस्टिक डक्ट हो सकती है, ठीक है। शॉर्ट सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है ही नहीं। लो इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट है विद द कॉमन बाइल डक्ट जिसने सॉरी विद द कॉमन हेपेटिक डक्ट जिसने कॉमन बाइल डक्ट बनानी है। और देयर कैन बी एक्सेसरी डक्ट्स, 2 डक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। या आप ये देखें टोटल डुप्लीकेटेड डबल गॉल ब्लैडर हो सकता है, फ्रीजियन कैप हो सकती है, बाइफिड गॉल ब्लैडर हो सकता है, एक्स्ट्रा पाउचेज इसके अंदर से निकली होती है, डायवर्टिकली ऑफ द गॉल ब्लैडर हो सकते हैं, एंड फ्लोटिंग गॉल ब्लैडर हो सकता है। गॉल ब्लैडर कैन हैव 2 सिस्टिक डक्ट्स हो सकती हैं, और एबरेंट आर्टरीज ब्लड सप्लाई भी हो सकती है। ओके, दीज आर कंजेनिटल मोस्ट ऑफ द कॉमन abnormal congenital abnormalities found with the gallbladder. अब गॉल ब्लैडर की तो हमने बता दी कि कौन सी कंजेनिटल एनोमलीज है। नाउ कमिंग टू द एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी सिस्टम की क्या कौन सी एनोमलीज हैं, यानी जो राइट और लेफ्ट कॉमन हेपेटिक आ रही है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक आ रही है, कॉमन हेपेटिक बन रही है, फिर सिस्टिक डक्ट मिल रही है, फिर कॉमन बाइल डक्ट बन रही है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कि लिवर का, इसमें ज़्यादातर जो अगर एट्रीजिया हो, एट्रीजिया मीन्स एब्सेंस या अंडर डेवलपमेंट, तो अगर एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री की अंडर डेवलपमेंट हो तो क्या होता है कि यूजुअली इट इज एसोसिएटेड विद अदर लिवर एबनॉर्मलिटीज लाइक फिब्रोसिस ऑफ द लिवर, और इवन इसका की कंजेनिटली एब्सेंस की वजह से बैक प्रेशर ऑफ द बाइल प्रोडक्शन एंड ऑल, इट कॉजेज डैमेज टू द लिवर, ठीक है। और दीज पेशेंट्स 1 in 12,000 बर्थ्स में इसकी प्रीडिस्पोजिशन है, अननोन एटियोलॉजी है, और क्योंकि सारा लिवर का सारा फंक्शन डैमेज होता है और यूजुअली अदर एनोमलीज आर इन्वॉल्व विद इट, तो यूजुअली पेशेंट डाई बाय द एज ऑफ ईयर 3, एंड यूजुअली लिवर फेलियर इज द कॉज ऑफ डेथ। और ये ऑब्वियसली जब एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी चैनल्स जब ऑब्स्ट्रक्टेड है तो बाइल ही की ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, तो ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर आएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाली पिक्चर क्या है? येलो वाली, येलो स्क्लेरा, पेल येलो स्किन, पेल स्टूल्स, डार्क यूरिन, प्रूराइटिस, ठीक है, और क्लिनिकल जॉन्डिस, ये सारा इसकी टिपिकल पिक्चर होती है ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर की। और देयर आर सम अदर डिजीजेस लाइक Caroli's disease. What is a Caroli's disease? It is also a congenital anomaly. इसमें एट्रीजिया की बजाय, एब्सेंस की बजाय डायलिटेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक डक्ट्स होती है, ठीक है। मल्टीपल सर्कुलेशन, जिसमें टायरी साइड से फूल जाता उस तरह हुआ होता है, और जहाँ सर्कुलेशन होती है ना उसके आगे स्टीनोसिस होता है, बैक प्रेशर की वजह से पीछे डायलिटेशन हुई भी होती है। आगे जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पीछे की तरफ प्रेशर पड़ेगा, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन से पीछे का एरिया वो डायलेटेड होगा, ऑब्स्ट्रक्शन से आगे का एरिया कोलैप्स होगा, ठीक है। और अब सेक्युलर डायलिटेशन जो ये एक्स्ट्रा हेपेटिक चैनल्स के अलावा Caroli डिजीज में इंट्रा हेपेटिक भी होती हैं, ठीक है। और इट इज एसोसिएटेड विद कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, जहाँ हेपेटिक पैरेन्काइमा इज replaced by fibrous tissue, non-functional fibrous tissue and scarring. इसमें क्या होता है, यूजुअली पेशेंट्स मिड तो नहीं 30 ईयर्स की एज में, 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज में प्रेजेंट करते हैं। दे हैव पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, कोलिंजाइटिस की पेन होती है, साथ जॉन्डिस की पिक्चर होती है, एंड एज वी हैव सीन के प्रोक्सिमल डायलिटेशन और आगे स्टीनोसिस है, तो जहाँ स्टीनोसिस होगा वहाँ आप स्टेंटिंग कर सकते हैं, यू कैन प्लेस अ स्प्रिंग टू कीप दैट एरिया ओपन और पेटेंट। और इसका मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, और यूजुअली दीज पेशेंट्स रिक्वायर अ फॉर्मल लिवर ट्रांसप्लांट टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि इंट्राहेपेटिक डायलिटेशन, इंट्राहेपेटिक चैनल्स भी डैमेज्ड हैं। तो इस तरफ एक्स्ट्रा हेपेटिक होता तो आप डक्ट्स को ही कुछ एनास्टोमोसिस या स्टेंटिंग या बाईपास कर सकते थे, बट इन दिस केस as the intrahepatic channels are dilatations and stenosis. So इसमें if the stenting or the conventional methods fail, then liver transplant is the only option left, and to deal with this problem. Then gallstones और कोलीलिथियासिस, गॉल ब्लैडर रिलेटेड सारी चीज़ें कोली है। कोलीसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर को निकालना, कोलीसिस्टोस्टमी, गॉल ब्लैडर में सुराख करना, कोलेंजाइटिस, गॉल ब्लैडर और उसके अफेक्टेड बिलियरी ट्री का इन्फेक्शन, तो इट्स ऑल कोली रिलेटेड। तो गॉल स्टोन को कहते हैं कोलीलिथियासिस,
Lithiasis is of course stone formation. It's quite a common phenomena. Uh, it is found in about 10 to 15% of the average population of the world, which is a quite high proposition. And out of these 10 to 15%, 80% of the patients are asymptomatic. सिर्फ 20% होते हैं जिनको symptoms आ रहे होते हैं, which we'll be discussing later. लेकिन 80% तो आराम से लेके फिर रहे होते हैं without even knowing. And it's an incidental finding upon X-ray, very rarely, or X-ray or ultrasound पे it's या CT scan कराते हैं तो it's an incidental finding usually. और 80% एसिम्टोमेटिक होते हैं, हमने बात कर ली. 80% जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं. कोलेस्ट्रॉल क्योंकि फैट लाइक होता है तो पेल कलर के स्टोन्स होते हैं, रेडियोल्यूसेंट होते हैं. और पिगमेंटेड स्टोन्स जो होते हैं वो ब्लैक और ब्राउन होते हैं. वो 80% इन एशियन कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन है. और ये यूजुअली ज़्यादा ब्लड ब्रेकडाउन और इसके प्रोडक्ट्स की वजह से जो बिलिरुबिन और वो चीज़ें बनती है, पिगमेंट जो रिलीज होती हैं, उसकी वजह से पिगमेंटेड स्टोन्स बनते हैं. And then can be mixed calcium oxalate, bile pigments and phospholipids मिला के mixed stones भी दे देते हैं, जो कि इनकी variable mixed picture होती है. I'll show you the pictures. See this yellowish stones, these are pure cholesterol stones. ठीक है, pure cholesterol या pure pigmented कम ही पाए जाते हैं. Usually it's a mixture of two. ये है purely pigmented stones. They are usually small, multiple, और the smaller they are, उतना ज़्यादा चांस होता है कि गॉल ब्लैडर से वो स्लिप होकर चले जाएं डक्ट में, सिस्टिक डक्ट में, और सिस्टिक डक्ट में जाके ब्लॉकेज कर दें या आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट में ब्लॉकेज कर दें. ठीक है. एंड दिस इज द मिक्स पिक्चर आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट. यूजुअली इट्स द मिक्स पिक्चर विच इज फाउंड, जिसमें पिगमेंटेशन और कोलेस्ट्रॉल स्टोन दोनों का एलिमेंट होता है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की बात करें तो क्यों बनते हैं स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर? व्हाट कॉजेज दिस फिनोमेना, जो कि 10 to 12% ऑफ पॉपुलेशन में कॉमन है. इट्स क्वाइट अ कॉमन फिनोमेना. दो तीन चीज़ें होती हैं. एक है कि गॉल ब्लैडर खुद से सही फंक्शन ना कर रहा हो. दूसरा है कि कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में कोई मसला चल रहा हो. तीसरा है कि बाइल जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है लिवर, जो कि आ रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज के लिए, वो सुपर सैचुरेटेड आ रहा है ऑलरेडी, और गॉल ब्लैडर उसको और कंसंट्रेट करेगा तो वो उधर उसकी कंक्रीशंस बन जाएंगी और एग्रीगेशन हो जाएंगे एंड स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी. या एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स की कमी है, जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल और ये जो पिगमेंट है जाके सेटलमेंट हो रहे हैं, स्टोन्स बना रहे हैं. यानी इसका एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, जो कि टर्मिनल आईएम से होनी होती है गॉल सिक्रीशंस की, बाइल की. तो अगर इम्पेयर्ड गॉल ब्लैडर का फंक्शन ही खराब होगा तो उसमें क्या होता है, एम्प्टिंग ऑफ गॉल ब्लैडर खराब होगी, हो सकती है. एब्जॉर्प्शन ऑफ गॉल ब्लैडर से जो कंसंट्रेट होना होता है वो उसका मसला हो सकता है, और एक्सक्रीशन का मसला ख़राब हो सकता है, क्योंकि म्यूकस और सर्टेन एलिमेंट्स सिक्रीट भी करता है गॉल ब्लैडर. तो दूसरा ये है कि म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन और रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएटिंग फैक्टर्स का भी प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने के ज़्यादा चांस होते हैं. सुपर सैचुरेटेड बाइल आ रहा हो पहले से ही और गॉल ब्लैडर उसको और ज़्यादा कंसनट्रेट करे तो उसमें पिगमेंटेड स्टोन ज़्यादा बनने के चांस होते हैं. ओबेसिटी में मैटर करती है, डाइट मैटर करती है, हाई फैट इनटेक, जेनेटिक्स में मैटर करते हैं, फैमिलियल, और फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है. आपको वो एक रट्टा याद कर ले, फैट, फर्टाइल, 40 फीमेल एंड फैट इनटेक. ये एफ 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 जो है, फैट, फीमेल, फर्टाइल, 40s, फैट इनटेक, ये इसके प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स होते हैं ज़्यादातर. ओके, coming to okay just wait, coming to गॉलस्टोन बनता कैसे है. अब आ जाओ, हमने जो सारी बात की थी ना, एक तो ये है कि इंट्राहेपेटिक, इस फिगर में आप देख सकते हैं, तो इंट्राहेपेटिक बना आके डक्ट में कहीं लॉज हो गया, ये छोटे छोटे होते हैं. दूसरा डी नोवो इन द गॉल ब्लैडर इटसेल्फ बन रहे हैं. गॉल ब्लैडर में क्यों बनेंगे? अगर टू मच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम द बाइल, जिससे बाइल कंसंट्रेट हो जाएगा, कंसंट्रेट होकर इसकी कंक्रीशंस बनेंगी, it will sink and form stones. ठीक है. टू मच ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड्स फ्रॉम बाइल हो जाए तो तब भी यही होगा. टू मच कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल, अगेन सैचुरेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिथेलियम हो जाए, जो कि इसके एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के फंक्शंस को हैम्पर करे, तो तब भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है. ठीक है. और ये यूजुअली स्टोन जो बड़े होते हैं वो तो
क्लिनिकली स्पीकिंग कितने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर में पड़े रहते हैं, नैरो डक्ट में से या स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई में से गुजरना मुश्किल होता है। लेकिन जो स्मॉलर स्टोन्स होते हैं, मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, उनका स्लिप होकर नीचे कॉमन बाइल डक्ट में जाके ऑब्स्ट्रक्शन करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, जिसके बाद एक्यूट पेन होती है, जॉन्डिस होती है एंड कंडीशन डिटीरियोरेट होती है पेशेंट की। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? गॉल स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं। यूजुअली हमने बताया कि 80% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, एंड इट्स एन इncidental फाइंडिंग अपॉन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशंस लाइक दैट। ओके। और जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं उनमें यूजुअली, होल्ड अ सेक प्लीज, या जो गॉल स्टोन की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? एसिम्प्टोमेटिक 80% इंसिडेंटल फाइंडिंग होगी, ठीक है। बाकी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन यानी पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के साथ प्रेजेंट करते हैं विद एब्स एंड फ्लो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पेन। जिस तरह बल नहीं पड़ता और छोड़ देते हैं, बल पड़ता है छोड़ देते हैं, स्पाज्मोटिक पेन होती है। इट्स अ हॉलो स्ट्रक्चर, तो हॉलो स्ट्रक्चर की जो भी पेन होती है स्पाज्मोटिक होती है। इट ग्रिप्स यू एंड लेट गो एंड देन इट ग्रिप्स यू एंड लेट गोज एंड देन इट ग्रिप्स यू एंड लेट गोज, वैक्सिंग एंड वीनिंग पैटर्न होता है। तो इसमें एब्स एंड फ्लोज आ रहे होते हैं टिपिकल पेन में। साथ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है एंड रेडिएशन टू द बैक। राइट स्कैपुला पे इसकी पेन रेडिएट होती है और बड़ी एक एटिपिकल सी लेकिन बुकिश प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट को राइट क्वाड्रेंट पेन है और राइट टिप ऑफ राइट स्कैपुला में पेन है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की पेन पीछे राइट स्कैपुला में क्यों चली गई? गॉल ब्लैडर का फ्रेनिक नर्व के साथ ताल्लुक होने की वजह से जो एक रेफर्ड पेन है वो थ्रू फ्रेनिक नर्व उधर राइट टिप ऑफ राइट स्कैपुला तक जा सकती है, रेडिएशन टू द बैक और द टिप ऑफ स्कैपुला। साथ it's nausea, it can be accompanied by nausea, vomiting, intolerance to fat, of course, because it is gallbladder is directly and bile salts are directly concerned with absorption and metabolism of the fat. डिस्पेप्सिया हो सकता है, अक्सर पेशेंट को एपीडी एसिड पेप्टिक डिजीज लाइक सिम्टम्स के साथ आता है और देन ही और शी इज फाउंड टू हैव गॉल स्टोन्स। रिलैप्सिंग रिमिटिंग पैटर्न होता है, क्योंकि रिलैप्सिंग रिमिटिंग इसलिए होता है कि जब तक आप गॉल स्टोन को रिमूव नहीं करोगे, till the time you remove the source, तो इन्फेक्शन दोबारा होने का, दोबारा कोलिसिस्टाइटिस की पेन होने का, दोबारा कोलिलिथेसिस की पेन होने का चांस हो सकता है, ठीक है। और अगर वही स्टोन स्लिप हो के जैसे मैंने आपको बताया नीचे चला जाए तो इट कैन कॉज जॉन्डिस व्हेन इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द कॉमन बाइल डक्ट, और गॉलस्टोन आइलियस भी हो सकता है। गॉलस्टोन आइलियस क्या होता है? ये आपके एमसीक्यूज में, सॉरी एससीक्यूज में भी सवाल आता होता है। गॉलस्टोन आइलियस ये हुआ कि गॉलस्टोन ने आइलियस कर दी, यानी गट की मोटिलिटी को स्टॉप कर दिया। ये कैसे कर दिया? गॉलस्टोन तो गॉल ब्लैडर के अंदर पड़ा होगा या सिस्टिक डक्ट के अंदर या कॉमन बाइल डक्ट के अंदर होगा, तो ये गट में आके इसने कहाँ से आइलियस कर दिया। वो ऐसे किया कि स्टोन बहुत अरसा गॉल ब्लैडर में पड़ा रहा, गॉल ब्लैडर वॉल के साथ एडजेसेंट लूप्स ऑफ गट जा रहे हैं, इंटेस्टाइन के लूप्स जा रहे हैं, वो गॉल ब्लैडर के साथ दीवार उनकी लगी हुई है। तो प्रोलॉन्ग स्टोन पड़ा रहने की वजह से या प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन ठीक हुआ, फिर इन्फेक्शन ठीक हुआ, तो वो स्टोन ने अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर की वॉल को निक्रोज किया, इरोड किया, और वहाँ से इरोड करके एडजेसेंट लूप ऑफ गट जो था उसकी वॉल को भी इरोड किया और वहाँ से गट के अंदर चला गया, और वहाँ जाके जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्ट हुआ वहाँ जाके इसने आइलियस कर दिया। यूजुअली आइलियस सीकल जंक्शन पर जाके जहाँ स्फिंक्टर होता है, इस तरह की जगहों पे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, लेकिन कहीं भी जाके रुक सकता है। तो गॉल स्टोन आइलियस में याद रखना है, गॉल स्टोन जो है गॉल ब्लैडर से निकल के अपनी डक्ट में से होता हुआ, सिस्टिक डक्ट में से होता हुआ, कॉमन बाइल डक्ट में से होता हुआ, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई और एम्पुला ऑफ वेटर पे आके, एम्पुला छोटा सा होता है, सुराख होते हैं, उसमें से गुजर के इंटेस्टाइन में नहीं जाता, ये जाता है डायरेक्ट गॉल ब्लैडर की वॉल को इरोड करके, और एडजेसेंट जो भी गट लूप जा रहा है उसकी वॉल को इरोड करके इट गोज डायरेक्टली इनटू द गट वेयर इट कॉजेज गॉल स्टोन आइलियस। इसकी एक बड़ी टिपिकल पिक्चर आती है, आपको मैं पिक्चर्स में दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है, नॉर्मली बिलरी सिस्टम जो या बिलरी ट्री के अंदर हवा नहीं होती, तो अगर पहले पेशेंट की एक हिस्ट्री थी कि उसका गॉल स्टोन्स थे, तो आपने बाद में एक्सरे कराया या अल्ट्रासाउंड कराया तो आपको नजर आया
स्टोन तो इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, और गॉल ब्लैडर या गॉल बिलियरी ट्री के अंदर हवा है जो कि नॉर्मली नहीं होती। तो ये हवा कहाँ से उधर चली गई? ऑब्वियसली गट के अंदर से गई है ना, गट के अंदर तो हवा होती है, यू बर्प एंड यू पास फ्लैटस एंड ऑल, तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर इन द गट। तो ये यहाँ से गट से जो एबनॉर्मल कनेक्शन फिस्टुला बना है बिटवीन द गॉल ब्लैडर वॉल एंड द गट वॉल, इसके थ्रू एयर भी चली जाती है, जिसकी वजह से आपको न्यूमोबिलिया मिलेगा, एयर इन द बिलियरी ट्री, और आपको स्टोन आउटसाइड द गॉल ब्लैडर मिलेगा इन द एनी पार्ट ऑफ द गट विच वाज एडजस्टिंग टू इट, और नीचे जाके ट्रिकल करके जहाँ नैरोइंग होगी वहाँ जाके लॉज हो जाएगा। So this is this pathophysiology of gallstone ileus. ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमने क्या, इंसिडेंटल फाइंडिंग मैंने आपको बता दिया, 80% एसिम्प्टोमेटिक है बता दिया। आपके पास ये ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक आई टोल्ड यू, अगर स्टोन स्मॉलर है तो वो गॉल ब्लैडर की बॉडी या फंडस में पड़ा हुआ था, वहाँ से स्लिप होके नेक में गया, नेक से स्लिप होके सिस्टिक डक्ट में जाके उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी, या यूजुअली सिस्टिक डक्ट से जाके कॉमन बाइल डक्ट में गया, कॉमन बाइल डक्ट में जाके इसने एम्पिला वेटर फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है तो उधर जहाँ स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डा है या वहाँ जाके या कॉमन बाइल डक्ट में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन कर दी तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की पिक्चर आ जाएगी, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की पिक्चर आ जाएगी, विच विल बी अगेन ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर क्या होती है, पेल कलर, येलो स्क्लेरा, पेल स्टूल्स, डार्क यूरिन, प्लूराइटिस, ये सारे ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर है, और इंट्राहेपेटिक चैनल्स डायलेटेड होंगी। अगेन स्टोन क्या, स्टोन ने ऑब्स्ट्रक्शन की तो डिस्टली उसके ऑब्स्ट्रक्शन से कोलैप्स और प्रॉक्सिमली डायलेटेशन होगी उसकी। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑब्स्ट्रक्शन कर दी तो जॉन्डिस कर देगा, इन्फ्लेमेशन की तो कोलिसिस्टाइटिस कर देगा, पानी भी खड़ा रहे तो इन्फेक्ट हो जाता है। तो अगर स्टोन होगा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पीछे बैक प्रेशर पड़ेगा, देयर विल बी सम एलिमेंट ऑफ स्टेसिस, और स्टेसिस की वजह से इटसेल्फ इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, या जहाँ स्टेसिस होगा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा। आइटस इज मींस इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, तो कोलिसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर या का इन्फेक्शन। जॉन्डिस हो जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन करे तो ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर आ जाएगी। एक्यूट एब्डोमेन कैसे करेगा, acute abdomen ऐसे कर सकते हैं, cholecystitis itself can present with acute abdomen, or it can perforate or erode, और ये अगर स्टोन जाके मैंने बताया आपको कि स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई में एम्पुला वेटर पे जब खुलता है तो वहाँ उसके साथ जस्ट बिफोर इट पैंक्रियाटिक डक्ट भी आके इधर खुलती है, तो अगर स्टोन वहाँ जाके लॉज हुआ है तो उसमें बैक प्रेशर ना तो सिर्फ बिलियरी ट्री पे डाला, उधर से पैंक्रियाटिक डक्ट पे भी डाला, जिसकी वजह से पैनक्रिएटाइटिस हो जाता है, विच इज पिक्चर ऑफ अ फुल ब्लोन एक्यूट एब्डोमेन। ठीक है, तो परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर हो जाए तो उससे भी पेरिटोनाइटिस हो सकता है, वो भी आपको पेरिटोनिज्म की पिक्चर बन जाती है। एंड इस इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, वो जो मैंने आपको बताया कोलिसिस्टोड्यूडेनल या कोलिडोकोड्यूडेनल फिस्टुला, जो गॉल ब्लैडर की वॉल का और ड्यूडेनम का डायरेक्ट फिस्टुला बन गया, या गॉल ब्लैडर की डक्ट की वॉल का और ड्यूडेनम का बन गया। फिस्टुला क्या है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेस। ठीक है, और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, लॉन्ग स्टैंडिंग केस में इन्फेक्शन हुआ, रिलैप्स हुआ, ठीक हुआ, दवाइयाँ नहीं ठीक हुआ, इन सच लॉन्ग केसेस जिसमें स्कारिंग रिजॉर्प्शन इन्फेक्शन, स्कारिंग रिजॉर्प्शन इन्फेक्शन, तो इट कैन लीड टू मैलिग्नेंसी ऑफ द गॉल ब्लैडर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी, आपके पास पेशेंट आएगा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के बाद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ आ रहा है, ठीक है, राइट साइड की पेन, इट कैन मिमिक द पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस, थोड़ा सा लो डाउन होती है ऑल द अपेंडिक्स की पेन, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर को मिमिक कर सकता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कैन प्रेजेंट विद सिमिलर फीचर्स। ठीक है, राइट साइडेड एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द रीनल ट्री, myocardial infection की 101 ways of presentation है, this can be one of them, सिर्फ patient pain in epigastrium के साथ present कर सकता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी कर सकता है, और राइट साइडेड लोबार नमोनिया, स्पेशली लोअर लोब का नमोनिया करो, न्यूमोनाइटिस हो जो कि डायफ्राम को इरिटेट करेगा और साथ ही लिवर और उसको भी गॉल ब्लैडर को इरिटेट कर सकता है, एंड फेनिक नर्व की सप्लाई मैंने आपको बताई, तो इट कैन ऑल्सो मिमिक एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ओके, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं स्टोन की, ये भी हमने बात की थी जब पहले। ये देखें, अगर इस डायग्राम में आप देख सकते हो एरो, स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर ही पड़ा रहा,
अंदर ही पड़े रहे स्टोन ने, तो स्टोन ने क्या किया, स्टेसिस किया, बार बार कोलेसिस्टाइटिस की पेन होती रही, ऑब्स्ट्रक्शन की, तो अंदर म्यूकस भर गया, म्यूकोसील बन सकती है, वही म्यूकस इन्फेक्ट हो गया तो एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर बन सकता है। अनट्रीटेड रहे तो यही इन्फेक्शन और ये ओवरवेलमिंग होकर इसकी ब्लड सप्लाई को डैमेज कर सकता है, जिसके साथ गैंग्रीन ऑफ द गॉल ब्लैडर हो सकती है। गैंग्रीन ऑफ द गॉल ब्लैडर हो जाए तो वॉल डैमेज होगी। वॉल डैमेज से क्या हुआ, बिलरी जो जूसेस हैं वो स्पिलेज इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, जिसकी वजह से परफोरेशन होने की वजह से पेरिटोनाइटिस हो गया। एंड बाइल इज क्वाइट इरिटेंट, तो इसके जो पेरिटोनाइटिस होता है उसको बिलरी पेरिटोनाइटिस कहते हैं। अगर एक्यूट पार्शली सेटल हो गया तो ये पार्शली ना हो तो इट कैन लीड टू क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। लॉन्ग स्टैंडिंग में आई टोल्ड यू इट कैन लीड टू कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर, कोलेंजियोकार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर सकता है स्ट्रक्चर्स बनाने की वजह से, अगर क्रॉनिक पिक्चर हो जाए। कोलेंजाइटिस कर सकता है, गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड इनटू द बिलियरी ट्री एंड कॉज कोलेंजाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, मैंने आपको बताया कि अगर ये जो आप देख रहे हैं नीचे इस पिक्चर में, यहाँ के स्टोन्स लॉज हो जाएं तो पैंक्रियाटिक डैट को भी साथ ब्लॉक कर देंगे कॉमन बाइल डैट के साथ साथ। तो बैक प्रेशर ऑफ द पैंक्रियाटिक डैट कैन लीड टू पैंक्रियाटाइटिस। और फिर अगेन अगर वो गॉल स्टोन आईएस हो, स्फिंक्टर में से नहीं गुजर के गया कि डायरेक्ट वॉल में से, वॉल टू वॉल से गुजर के चला जाए, तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और गॉल स्टोन आईलियस कर सकता है। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट कैन यू सी? लेवर को ऊपर फ्लिप किया हुआ है और लेवर की अंडर साइड पे आप ये गॉल ब्लैडर देख रहे हो। गॉल ब्लैडर आप देख रहे हो रेड, एंग्री लुकिंग, इन्फ्लेम्ड, साथ नीचे जो नीचे चर्बी सी आई हुई है दैट इज ओमेंटम। ओमेंटम एब्डोमिनल कैविटी का पुलिसमैन है, इट हैज कम देयर टू कवर द इन्फेक्शन, सील ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये पिक्चर है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस या वेसिकुलर डायलेटेड है एंड लुकिंग रेड। ये क्या है? मुझे लेबर ऊपर फ्लैट के नीचे गॉल ब्लैडर है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा इसके अंदर म्यूकोइड सिक्रीशन से भरा हुआ है। दिस इज म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये ऑब्स्ट्रक्शन से हो सकते हैं नॉन इन्फेक्टेड केसेस। ये म्यूकोसील फॉर एग्जांपल इन्फेक्ट हो जाए इस केस में ड्यू टू मल्टीपल स्टोन्स, ब्लैक ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन्स है जिन्होंने इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्टेसिस हुआ, स्टेसिस लेड टू इन्फ्लेमेशन। बाहर की गॉल ब्लैडर की वॉल देखो लाल एंग्री लुकिंग और अंदर सारा प्यूरुलेंट मैटर अलॉन्ग विद स्टोन्स। So this is empyema gallbladder. Pus in the gallbladder is empyema of the gallbladder, which can, जो मैंने आपको बताया कि अगर ये चीज़ें करते रहे अनट्रीटेड रहे तो it causes necrosis of the gallbladder wall, और ये this is gangrene of the gallbladder which can lead to rupture and spillage of the bile contents into the peritoneal cavity leading to biliary peritonitis. ठीक है, पेशेंट आया, कौन कौन सा आया? अच्छा, इसमें कैलोस ट्रायंगल हमने पढ़ ली ना, एक चारकोट स्ट्रायड होता है, वो कोलेंजाइटिस, असेंडिंग कोलेंजाइटिस का होता है कि बिलियरी ट्री के नीचे से ऊपर की तरफ इन्फेक्शन जा रहा है। उसमें क्या होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर और जॉन्डिस ट्रायड है। ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर है ना, इसलिए इचिंग साथ होगी, प्लूराइटिस साथ होगा। तो फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड जॉन्डिस इज अ क्लासिक चारकोट स्ट्रायड ऑफ असेंडिंग कोलेंजाइटिस। गॉलस्टोन आईलियस का मैंने आपको बताया कैसे गया। ये देखो आईलियम में पड़ा हुआ है यहाँ, इफ यू कैन सी द एरो। उसके बाद उसमें उसी आईलियम के पार्ट को लॉन्गिट्यूडनल निक दिया, सामने से वो स्टोन नजर आया, उसको स्टोन को रिट्रीव कर दिया, इसको रिपेयर कर दिया और ऊपर जाके कोलिसिस्टेक्टमी की, और जहाँ से ये उसके साथ एब्नॉर्मल फिस्टुलस कनेक्शन से आया है वहाँ भी आपको रिपेयर करना पड़ता है। ये देखो, ये साइंस थी। ये आप ब्लू में देख रहे हो गॉल ब्लैडर का, यहाँ स्टोन पड़ा होता है फाइब्रोसिस स्कारिंग की और वजह से उसकी वॉल में दोनों वॉल्स आपस में फ्यूज हो गई और गट में आ गया और फिर नीचे ट्रेवल करके जाके कहीं लॉज हो गया। तो दिस इज कॉजेज गॉलस्टोन आईलियस। अनदर पिक्चर शोइंग, ये देखो यहाँ एरो बना हुआ है, साइट ऑफ इम्पैक्टेड स्टोन, अगेन इट्स इन द आईलियम, और ये देखो उसकी लॉन्गिट्यूड स्लिट देके आप स्टोन रिट्रीव कर रहे हैं विच इज आउटसाइड द गॉल ब्लैडर इन द गट। सी दिस एरो, ये एरो दिखा रहे हैं, यहाँ हवा है ब्लैक, वो थोड़ा सा ब्लैक नजर आ रही है एरो। तो ब्लैक इज एयर, वाइट इज वाटर और फ्लूइड और बोन्स, ये टफ स्ट्रक्चर्स हैं। और ये नीचे एक एरो देख रहे हो, वाइट एरो जो है ये गोल सी चीज के पेल्विस में पहुंची हुई है, ये स्टोन है जो कि गट के अंदर पड़ा हुआ है, और ये हवा है जो कि बिलरी ट्री के अंदर आई हुई है। तो बाइल के अंदर हवा, बिलरी ट्री के अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। तो अगेन
गॉल स्टोन आइलियस हुआ है जिसने गट की वॉल को परफोरेट करके गॉल ब्लैडर वॉल से के बाद इधर गट के अंदर आ गया और गट से हवा बिलियरी ट्री के अंदर चली गई है. दिस इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में देखिए यू कैन सी द गॉल ब्लैडर एंड सोनोग्राफिक शैडो आ रहा है बीच में एक सिंगल सॉलिटरी स्टोन का. दिस इज गॉल स्टोन. सीटी स्कैन ऊपर से देखो, ये लिवर है, लिवर के अंडर सरफेस है, इसके अंदर मल्टीपल स्टोन्स हैं गॉल ब्लैडर के अंदर. आप डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? हिस्ट्री पेशेंट देगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर, चिल्स, स्पेशली फैटी फूड इंटॉलरेंस, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और मर्फी साइन उसमें आ रहा होगा. मर्फी साइन क्या होगा कि राइट, हमने बात की ना, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है गॉल ब्लैडर. तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मिड क्लेविकुलर लाइन में, सामने की तरफ मिड क्लेविकुलर लाइन में जस्ट बिलो द रिब केज, आप जोर से अपना अंगूठा दबाएंगे ना और पेशेंट से कहेंगे कि सांस अंदर खींचे. सांस अंदर खींचेगा तो डायफ्राम नीचे आएगी, डायफ्राम नीचे आएगी तो लिवर को भी नीचे पुश करेगी, लिवर को नीचे पुश करेगी तो लिवर के नीचे ही गॉल ब्लैडर लगा हुआ है उसको भी नीचे पुश करेगी. तो क्या होगा? एक्यूटली इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर आपके जैसी फिंगर को या थंब को आके लगेगा ना तो पेशेंट एकदम अपना सांस रोक लेगा और उसको शार्प पेन होगी. दिस इज अ पॉजिटिव मर्फी साइन विच इज अ साइन ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस. ठीक है, डिटेल्ड हिस्ट्री हुई, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको जॉन्डिस मिल गया, मर्फी साइन अगर मिल सकता है. रेडियोलॉजी में आप क्या करते हैं? एक्सरे, जिसने हमने आपको पीछे दिखाया. अल्ट्रासाउंड भी आप कर सकते हैं. अगर कोलिसिस्टाइटिस का एलिमेंट होगा तो ल्यूकोसाइट्स रेज्ड होंगे सीबीसी के अंदर. ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर होगा तो यार लिवर डैमेज हो रहा तो एलएफटीज आपके डिरेंज हो सकते हैं और पैल्पेबल गॉल ब्लैडर भी हो सकता है. ठीक है, ये मर्फी साइन इलिसिट करके दिखा रहे हैं. पूरे आपने हाथ से राइट क्वाड्रेंट में बिलो द रिब इन द मिड क्लेविकुलर लाइन आपने अपना हाथ डिप किया. जब पेशेंट एक्सपायर कर रहा है आपने हाथ डिप अंदर कर दिया और जब पेशेंट को फिर आपने कहना है कि गहरा सांस ले. जब इंस्पायर कर होगा तो आपने हाथ वहीं होल्ड करना है. तो जब नीचे आके उसके गॉल ब्लैडर आके लगेगा ना आपके हाथ पे तो पेशेंट एकदम विंस करेगा एंड ही विल कैच हिज ब्रेथ. तो दिस इज मर्फी साइन. व्हाट इज कर्वॉइजर्स लॉ? इंपॉर्टेंट चीजें जो रटे वाली इसमें रहेगी. कैलोस ट्रायंगल, कर्वॉइजर्स लॉ और कैलोस ट्रायंगल, मर्फी साइन. और कर्वॉइजर्स लॉ क्या है कि अगर पैल्पेबल गॉल ब्लैडर है और जॉन्डिस है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पेन, तो ये यूजुअली गॉल स्टोन की वजह से नहीं होता. यूजुअली ज़्यादा सिनिस्टर पैथोलॉजी होती है, लाइक सीए हेड ऑफ पैनक्रियाज हो सकता है, उसकी भी डक्ट वहीं खुलनी है तो वहाँ मास बना होता है. तो अगर पैल्पेबल गॉल ब्लैडर हो विच इज़ नॉन टेंडर एंड विद जॉन्डिस, तो इट इज़ अनलाइकली के इट इज़ ड्यू टू गॉल स्टोन्स. दिस इज कर्वॉइजर्स लॉ. फिर आपने डायग्नोसिस की हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये आपको मैंने बता दिया. सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस और एलएफटीज में डिरेंजमेंट, ये सारा आप देखोगे. ठीक है, ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट इसकी एक सर्जिकल मैनेजमेंट है, एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है. एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस ताकि आपके बाइल प्रोडक्शन और बाइल जैसे कि पेशेंट को पेन होनी है वो आईटी फ्लूइड देके पेशेंट को डिहाइड्रेट करें, एनाल्जेसिया देके पेन रिलीव करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं पॉजिटिव तो दैट नॉर्मल कन्वेंशनल फ्लोरा. इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन टाइप आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं जो ग्राम नेगेटिव को भी कवर दे. ठीक है, और अगर गॉल स्टोन्स की वजह से कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है तो आप कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं, ओपन और लेप्रोस्कोपिक. वो दे बताता हूँ आगे मैं कि कब करनी होती है. ट्रीटमेंट इंसिडेंटल, अगर गॉल स्टोन है तो यू लेट देम बी, डोंट डू एनीथिंग अनलेस एंड अंटिल दे आर कॉजिंग पेन. अगर बार बार दर्द हो रही है, बिल भी कोलिक हो रहा है, तो आप कंजर्वेटिवली भी मैनेज कर सकते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन और पेन किलर्स और लाइफस्टाइल देके, और आप इलेक्टिव सर्जरी करते हैं. वो ओपन भी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं. लेकिन अगर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ है जिसमें एंग्री लुकिंग ब्लड वेसल्स भी होंगी, टिश्यू भी फ्राइबल हुआ होगा, तो ज़्यादा डैमेज का चांस होता है अगर आप सर्जरी करें, चाहे ओपन चाहे लेप्रोस्कोपिक. तो उसमें आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं विच इज़ कि आप उसको 6 वीक्स के लिए एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स देके और रिहाइड्रेट और डाइटरी ख्याल रख के पेशेंट को आप बिल्डअप करते हैं. एक्यूट फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन जब ओवर हो जाता है आफ्टर 6 वीक्स, तो तब आप करते हैं.
अपेंडिस सॉरी कोलेसिस्टेक्टमी, चाहे ओपन करें चाहे लेप्रोस्कोपिक करें, तो दिस इज डिलेड और इंटरवल कोलेसिस्टेक्टमी इसको कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम है तो निल बाय माउथ, कैथेटराइज फॉर इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग, यूरिनरी कैथेटर डालते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, पैरेंट्रल यानी इंजेक्शन की फॉर्म में आप पेन किलर्स देते हैं, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देते हैं, इसलिए एडमिट करना इन पेशेंट्स को ज़रूरी होता है। और एंटी अल्सर ड्रग्स लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अगर नोजिया ज़्यादा, और एंटीएमेटिक्स देते हैं, और मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। और उसके बाद आप अपेंडिसेक्टमी सॉरी कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं। ओपन कर सकते हैं थ्रू राइट सब कॉस्टल इंसिजन जिसको कॉकस इंसिजन कहते हैं, या लेप्रोस्कोपिक कर सकते हैं। उसमें 3 पोर्ट 4 पोर्ट दोनों मेथड होते हैं, लेकिन आई थिंक आपको इतना भी पता हो कि कोलेसिस्टेक्टमी जो होती है ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक दोनों तरह हो सकती है। ओपन में तो सब कॉस्टल इंसिजन देते हैं ऑन द राइट साइड, कॉकस इंसिजन, और लेप्रोस्कोपिक में 3 पोर्ट या 4 पोर्ट मेथड दोनों में से कोई भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन याद ही रखना है कि जो भी करना है ना, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस को सेटल करके फिर इंटरवल करना है, या गॉलस्टोन तो वैसे हो तो आप इलेक्टिव कर देते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ लेप्रोस्कोपिक क्या है? एक बड़ा कट देने की बजाय आप छोटा सा कट देते हैं, 4 या 3 पोर्ट या 4 पोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर 4 पोर्ट है तो 2 5 मिलीमीटर के कट होते हैं, 2 10 मिलीमीटर के कट होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो, एक आपने कोई 10 सेंटीमीटर का देना है और ये छोटे छोटे 4 मिलीमीटर के देने हैं, तो बड़ा फर्क पड़ता है। एक्सेस ट्रॉमा कम हो जाता है। सर्जरी इज ऑल्सो अ कंट्रोल ट्रॉमा, तो इस केस में ट्रॉमा कम हो जाता है। ऑपरेटिव ट्रॉमा कम होगा तो ऑपरेटिव पेन कम होगी, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होगी, हर्निया बनने का चांस कम होगा, जल्दी पेशेंट घर चला जाएगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल का ज़्यादा खर्चे नहीं पड़ेंगे, शॉर्ट एंड हॉस्पिटल स्टे सेल्फ हो जाएगा, पेशेंट जल्दी काम पे जा सकेगा अर्ली रिकवरी की वजह से, और मेंटल एंड जाहिर बात है फिजिकल रिकवरी भी जल्दी ही होगी। तो क्या हुआ, स्मॉल वूंड साइज हुआ, पेन कम हुई, इन्फेक्शन का चांस कम है क्योंकि जख्म छोटा है, ब्लीडिंग का चांस कम है, कम आपने टिश्यू को काटा पीटा है, हर्निया बनने का चांस कम है, वूंड हीसेंस का कम है, हाइपोथर्मिया एक्सपोजर कम होने की वजह से फ्लूइड लॉस का चांस कम है। ठीक है, नर्व इंट्रैप होने का बड़े स्कार के अंदर चांस कम है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कोलेसिस्टेक्टमी। अगर वही मैंने आपको बताया एम्पाइमा गॉल ब्लैडर के म्यूकोसील इन्फेक्ट हो जाए तो उसके अंदर पस से भर जाए तो एम्पाइमा कहते हैं। एक कोलेसिस्टाइटिस अनदर कॉज जिसमें स्टोन आपको कहीं भी नहीं मिलता, और लेकिन कोलेसिस्टाइटिस के सारे फीचर्स आ रहे होते हैं इन्फेक्शन के, और जो कि जिसना लगता है कि स्टोन के या इस तरह आ रहे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर होता है आफ्टर मेजर सर्जरीज, ट्रॉमा या बर्न पेशेंट्स में ये भी फिनोमेना देखा गया कि बर्न पेशेंट्स में हो सकता है। और जिनमें कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम होती है उसमें कोलेस्ट्रोलोसिस हो सकता है, और सब म्यूकस सेग्रीगेशन के साथ उसको रिकग्नाइज करते हैं। ओके, थैंक यू, and thank you class, and keep yourself safe, everybody around you safe, and take good care of yourself, and hope to see you soon after this ordeal is over. Good luck. Okay. Thank you मेरा भाई।